This is the 48th video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 47th video. In this video also I'll take up a numerical problem on Newton's laws of motion involving the concept of combined equation, pseudo force and constraint theory. Okay. First I'll draw the diagram of the situation. Alright. See, the situation is as shown. Here there is a wedge in which there is a vertical groove. यहाँ पर एक पुली अटैच्ड है, रिजिडली फिक्स्ड है। यहाँ पर एक ब्लॉक B1 है जिसका मास है 2m। ये एक स्ट्रिंग है जो पास करता है इस पुली पर, और यहाँ पर एक ब्लॉक B2 है जिसका मास m है, और ये वेज W है जिसका मास 3m के बराबर है। वेज W है जिसका मास कितना है, 3m मास है। ये आपका स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पर आपका ये वर्टिकल ग्रूव है, इसमें इस ब्लॉक B2 ऑफ मास m है जो दोनों वॉल से कांटेक्ट में है। यहाँ ब्लॉक B1 ऑफ मास 2m है। ये मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक B1 से कनेक्टेड है यहाँ पर, और ये रस्सी इस पुली पर होकर पास करता है, एंड दिस स्ट्रिंग इज इन कांटेक्ट विद द ब्लॉक B2 ऑफ मास m. ओके। क्वेश्चन ये है कि when the system is released from rest, to find the acceleration of wedge W with respect to ground. ये हमको बताना है, ठीक है। You have to find the acceleration of wedge W with respect to ground. All right, fine. So this we have to determine. Okay, fine. Okay. So first of all, सबसे पहले we have to know कि why should the wedge accelerate with respect to ground. Reason is that this pulley is rigidly fixed to the wedge. This pulley is fixed rigidly to the wedge. It is rigidly attached to the wedge. Okay. Question is, why should the wedge accelerate with respect to ground? Reason is here. The string will exert a normal contact force on the quarter portion of the pulley. So this pulley, I draw the diagram here. See, like this. Now this is the material point P dash of the pulley, highest point of the pulley, where the string is in contact with the pulley. And this is a point here, P. This point is P dash, as I have shown here, and this point is P double dash, as I have shown here. The string is in contact with this portion of the pulley. At all points, string will exert a normal contact force on the pulley. The horizontal component of this normal contact force will cause the pulley to accelerate rightward with respect to ground. Okay, fine. Is it clear? The string is in contact with portion of the pulley P dash, P double dash. At all points, the string exerts a normal contact force on the pulley. The resultant rightward component of this resultant of these forces will cause the wedge to accelerate rightward with respect to ground. Okay. So let us assume that the acceleration of wedge with respect to ground is A. Say. Okay. Now suppose with respect to this wedge, block B1 accelerates with acceleration B with respect to wedge, and B2 moves with acceleration C with respect to the wedge. Okay. So A B1W, acceleration of block B1 with respect to wedge, that is it has assumed to be in leftward direction, and A B2W, that is acceleration C, that has also been assumed in downward direction. Okay. So A B1W is equal to B left,
and B2W is equal to C down. Okay, fine. So now we have to determine the value of A. The string is massless and there is no friction between string and pulley in contact anywhere. So tension at all points of the string is equal, say T say. Alright, fine. So first what we'll do, we'll write down the equations of motion of B1 and B2 with respect to wedge. So I'll draw the free body of B1 with respect to ground, with respect to wedge. Mass of B1 is 2m. So free body of B1 with respect to wedge, 2 mg. T. This wedge will exert a normal contact force N1 on block B1. Okay. And now this wedge is a translating non-inertial reference frame. So as seen from the wedge, a pseudo force will act on the block in leftward direction. That pseudo force will be 2 MA. 2 MA. So this is the free body of the block B1 with respect to wedge. Okay. To this I apply Newton's second law with respect to wedge in leftward direction. These forces will have no component. Only 2 MA T will have a component. Will be force. So T plus 2 MA is equal to 2 MB. First equation. Right. So T plus 2 MA is equal to 2 MB. First equation. Now draw the free body of B2 with respect to wedge. Okay. This is B2. B2 is mg weight. The string exerts a tension T. Both the vertical walls will exert a force on B2. Say N2 and N3. Okay. And we are drawing the free body of B2 with respect to wedge. So with respect to wedge, a pseudo force will act on it. Leftward MA. Okay. Alright. अब इसका न्यूटन का इक्वेशन लिखते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेज के फ्रेम में. तो खाली ये दो टर्म आएगा, बाकी सब राइट एंगल पर है. दे विल हैव नो कंपोनेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना. तो क्या लिखेंगे? mg minus t is equal to mc. सेकेंड इक्वेशन में लिखा गया. ठीक है ना. अच्छा, हम लोग क्या करना है, m 2m 3m हम लोग कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में. उसके लिए पहले हम ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको हम बार बार बोल चुके हैं. कंबाइंड इक्वेशन हम हमेशा हम लोग ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं. उसमें खाली रियल फोर्सेस एक्ट करेगा हर बॉडी पर, कोई सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए m 2m और 3m का सेपरेट फ्री बॉडीज बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में. यहाँ फ्री बॉडी m का बनाए थे, 2m का बनाए थे किसके फ्रेम में, वेज के फ्रेम में. और ये फ्री बॉडी m का बनाए थे वेज के फ्रेम में. इन कंबाइंड इक्वेशन में हम लोग इन दोनों को फिर से फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में बनाएंगे. इसका भी ग्राउंड फ्रेम में बनाएंगे फ्री बॉडी. ठीक है. तो देखिए ये B1 हो गया मेरा ब्लॉक B1. B1 पर नीचे क्या लाएगा बताइए, 2 mg लाएगा. इस पर नॉर्मल फोर्स लाएगा, इस पर N1 लगाएगा. ठीक है. और एक टेंशन T लगेगा, बस दैट्स ऑल. ये सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगा इसमें. ठीक है ना. फाइन. अच्छा, अब जब फ्री बॉडी B2 को बनाते हैं ग्राउंड के फ्रेम में, अभी रियल फोर्सेस एक्ट करेगा. T है, mg है, N2 N3 है. ये फ्री बॉडी किसका हो गया, m का हो गया ग्राउंड के फ्रेम में. ठीक है. अच्छा, इसको मिटाते हैं. ठीक है.
अब फ्री बॉडी बनाते हैं वेज का ग्राउंड फ्रेम में। वेज का बड़ा बना के दिखा रहे हैं, देखिए। वेज का एक वेट होगा 3 mg। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लाएगा N4। ये ब्लॉक B1 इस पर एग्जर्ट करेगा डाउनवर्ड फोर्स। कितना डाउनवर्ड फोर्स कर एग्जर्ट करेगा? N1 एग्जर्ट करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। और यहाँ पर इस पर N2 N3 इधर लगेगा, N2 N3 लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से। जो पुली जो है रिजिडली फिक्स्ड है। अभी हम बताया था कि ये रस्सी जो है इस पुली से क्वार्टर पोर्शन पर कांटेक्ट में है, तो क्वार्टर पोर्शन ऑफ पुली पर ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रस्सी लगाएगा पुली पर, तो उसका रिजल्टेंट इफेक्टिवली पुली के 2 पॉइंट पर लगेगा। एक तो पॉइंट P डैश पर टेंशन T राइटवर्ड, और एक पॉइंट P डबल डैश पर T डाउनवर्ड। ये देखिए से, समझ गए? फाइन। तो यही जाके आपका फ्री बॉडी हो गया ग्राउंड फ्रेम में इसका। अब जब कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे तीनों का, खाली उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आएगा। इसमें कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस है? ये N2 N3 इंटरनल फोर्स है, N1 इंटरनल फोर्स है, ये T और T सब इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स खाली कौन सा है? 3 mg 2 mg mg, बस, दैट इज ओनली एक्सटर्नल फोर्स। और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पर, राइट? और इस राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई कंपोनेंट नहीं है, समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम को क्या लिखेंगे? 0। 0 इज इक्वल टू इसका वेज का 3m मास है इसका, 3ma प्लस, अब इसका एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे? टर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? सपोज हम जिस डायरेक्शन लिखना चाहते हैं उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे उसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? 2m। अगर दिक्कत है तो यहाँ टर्म का नाम लिखेंगे। एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्स डायरेक्शन उधर AB1G का एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, प्लस m। अब इसका भी टर्म का नाम लिखेंगे, AB2GX, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ B2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, फाइन। This one I love this, okay? अब इसमें देख लीजिए m will go away, ठीक है ना? इक्वेशन क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा इक्वेशन? 0 बराबर 3a प्लस 2 टाइम्स AB1GX। उसको डॉट डॉट नोटेशन में कैसे लिखेंगे? AB1G डॉट I हैट प्लस AB2GX, AB2G dot I hat. I hat is a unit vector along x-axis, rightward direction. 0 is equal to 3a plus 2 times AB1G. So from the frame of translating from frame formula, AB1G will be written as what? AB1W plus AWG dot I hat. AB2G will be written as what? AB2W plus AWG dot I hat. 3a plus 2 times AB1W is nothing but vector B. AWG is vector A. AB2W is vector C. AWG is vector A dot I hat. Alright, fine. This will be written as 0 बराबर 3a plus 2b dot I hat plus a dot I hat, c dot I hat plus a dot I hat. Alright, fine. Now I'll rub this one, okay?
इस इक्वेशन को यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह मिल जाएगा। एम जी माइनस टी बराबर एम सी, सेकेंड इक्वेशन है। इसको मिटा देते हैं, जगह लिखने में जगह चाहिए ना, इसलिए। इसको एक्सपेंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। 2 टाइम्स बी डॉट आई, बी लेफ्टवर्ड है, आई राइटवर्ड है, बी डॉट आई होगा बी इंटू 1 इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, माइनस बी प्लस ए डॉट आई। ए डॉट आई होगा ए इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज सिंपली ए, प्लस सी डॉट आई। सी डाउनवर्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में है, आई राइट, सी डाउनवर्ड है, आई राइटवर्ड है, राइट एंगल है, सी डॉट आई 0 हो जाएगा, प्लस ए डॉट आई। ए डॉट आई विल सिंपली बी ए। So we get how much? 0 is equal to 3a plus 2a, 5a plus a, 6a minus 2b. In b बराबर 3a. Okay. All right. Third equation. b is just equal to how much? 3a. All right. ठीक है. b is just equal to how much? 3a. 3a plus 2 times a minus b plus a. Okay, fine. So 3a plus 2a, 5 is 6a. 6a minus 2b. So b is equal to how much? 3a. Alright. b is equal to how much? Tell me. 3a. b का वैल्यू 3a हो गया। तीन इक्वेशन लिखा गया। t plus 2ma बराबर 2mb, mg minus t बराबर mc, and b is equal to 3a. थर्ड इक्वेशन आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ अननोन्स काउंट किया जाए। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? a b c t, 4 अननोन्स आर देयर। तीन इक्वेशन लिखा चुका है। सवाल है एक कंडीशन और कहाँ से आएगा? अगर कंस्टेंट इक्वेशन से है ना, ए बी सी के बीच का रिलेशनशिप, उससे आएगा आंसर। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब कंस्टेंट इक्वेशन जो है वो कि बेस्ड है इस कंसेप्ट पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट इन ऑल फ्रेम्स आर रेफरेंस। सो वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट इज 0 इन ऑल द फ्रेम्स आर रेफरेंस। ठीक है। सो अब कंस्टेंट इक्वेशन हम चाहें तो ग्राउंड में लिखें या वेज फ्रेम में लिखें या किसी के फ्रेम में लिख सकते हैं। तो दो मेथड से हम कंस्टेंट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ओके, तो कंस्टेंट इक्वेशन इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले लिखने पहले एक बार जान लेना है रस्सी किससे किससे कांटेक्ट में है। देखिए ये जो स्ट्रिंग है मेरा ये वाला, ये B1 से कनेक्टेड है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा, ये स्ट्रिंग जो है इस क्वार्टर पुली को पास करता है, पुली के 1/4 पोर्शन पर। तो वो पुली के क्वार्टर पोर्शन पर हर पॉइंट पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रहा है, जो दिखाए थे पहले कुछ देर पहले। उसका रिजल्टेंट लेंगे तो बोलेंगे पी डैश पर पुली, ये जो रस्सी है वो पुली के पी पर इफेक्टिवली दो ही पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, तो पी डैश पर टी इधर और एक पी डबल डैश पर टी नीचे। मैंने कहने मतलब कि ये रस्सी जो है पुली पर इफेक्टिवली दो ही पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है, एक पॉइंट पर पी डैश उधर और एक पी डबल डैश पर टी इधर। ठीक है, और रस्सी किससे कनेक्टेड है? ब्लॉक B2 ऑफ मास m से। समझ गया ना। तो रस्सी 4 पॉइंट से कांटेक्ट में है, एक तो B1 के इस पॉइंट पर, फिर पुली के 2 पॉइंट पी डैश पी डबल डैश पर और एक M पर। 4 पॉइंट पर लग रहा है रस्सी का टेंशन, लग रहा है, एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि ग्राउंड के फ्रेम में T से T प्लस dt में इसका डिस्प्लेसमेंट उधर dx है, dx इसका डिस्प्लेसमेंट है T से T प्लस dt में, इसका वेज का। इसका मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है dx, dl1 है किसका? B1 का। dl1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B1 विद रिस्पेक्ट टू वेज इन टाइम t to t प्लस dt। और B2 का मानते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट dl2 है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू वेज है।
और dl1 जो है अभी वेज के रेस्पेक्ट में है, समझ गए। dl1 is the displacement of block b1 with respect to wedge, and dl2 is the displacement of b2 with respect to wedge, and dx is the displacement of wedge with respect to ground in the time interval t to t plus what dt। ठीक है, ऑल राइट। तो पहले हम लोग कंस्टेंट इक्वेशन लिखेंगे इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। कंस्टेंट इक्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम, तो उसमें जब हम लोग वर्क डन का स्ट्रिंग लिखेंगे, सारा वर्क डन ग्राउंड के फ्रेम में लिखाएगा। यानी फोर्स का वर्क डन एफ डॉट डी आर होता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट डी आर जो लेंगे सारे पॉइंट्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ लेते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, इस पर टी इधर लगता है। अब B1 का डिस्प्लेसमेंट D1 DL1 ग्राउंड में है, वेज में है, बट हमको चाहिए ग्राउंड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, फिर पुली के दो पॉइंट पर P डैश P डबल डैश पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ P डैश विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस पॉइंट को हम P डैश बोले, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए है ना, बोलिए। इसको लिखेंगे प्लस इस पॉइंट P डबल डैश पर P डैश ग्राउंड प्लस इस पॉइंट पर B2 पर, B2 पर T ऊपर लगता है जिस नीचे है वेज के फ्रेम में, बट हमको चाहिए ग्राउंड के फ्रेम में। T dot displacement of B2 with respect to ground adds up to 0, सब ऐड अप करके 0 देगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, T dot dB1G, T dot dB1G, dB1G meaning what, displacement of B1 with respect to ground। उसको लिखेंगे displacement of B1 with respect to wedge plus displacement of wedge with respect to ground plus T dot dP dash G, that will be written as displacement of P dash with respect to wedge dP dash G। Okay, that is direct। So plus dP dash G। Now P dash is the material point of pulley. Pulley is rigidly fixed to the wedge. Displacement of wedge with respect to ground is dx rightward. So displacement of P dash with respect to ground is also dx rightward. So here it will be T dot dx. What about T dot d double dash G? So in this T is in downward direction, and P double dash dP dash double D is again dx rightward. So T1 dot dx, यहाँ T1 लिख दिए क्योंकि ये वाला T मीन कर रहा है डायरेक्शन, इस ये वाला T ये इसमें है, ये वाला इधर, और ये जो T1 है वो P डैश पर नीचे है, डायरेक्शन डिफरेंट है, T की जगह T1 लिख दिए, प्लस इसका T dot dB2G adds up to 0। ऑलराइट, फाइन। अच्छा, इसको यहाँ लिख देते हैं, मिटा के ऊपर लिख देते हैं, देखिए ठीक है ना। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, तो T डॉट क्या लिखेंगे, T डॉट dB1W, dB1W is vector dl1, dWG that is vector dx plus T dot dx। T dot dx is which point, T dot dx is this point here, T is rightward and dx also rightward, so T dot dx becomes what, this becomes T is in rightward direction, dx also rightward direction, so T dx cos 0 degree, so plus T dx, this one will be 0 because at point P double dash T tension is in downward direction and displacement of P double dash with respect to ground is dx rightward, angle right angle, so dot product vanishes, this term goes away, plus 0 plus
T dot dB1G, dB2G. So this will be written as T dot dB2G. dB2G will be what? Displacement of B2 with respect to wedge. Displacement of wedge with respect to ground. Adds up to 0. Alright, fine. Now this one is up, okay? So this becomes T dot dl1. T dot dl1 plus T dot dx. This becomes T dx. This is 0. This was T dot db2w. db2w. T dot dwg is 0. Okay. This becomes what? 0. 0 हो गया. ठीक है ना? अब T dot dl1 क्या होगा? T इधर है, dl1 भी इधर है, हो जाएगा T dl1 cos 0 डिग्री, T dl1. T dot dx क्या होगा? इसको T इधर है, dx उधर है, ये हो जाएगा माइनस T dx. T dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 हुआ. अच्छा ये देखिए T dx, जो T dx लिखा हुआ ही है, प्लस T dot db2w. T is in this, db2w is downward, angle is equal to 180 degree. So how much will write? T db2w, that is C dl2 in downward direction. T इस पर ऊपर लग रहा है. T dl2 cos 180 degree minus 1 plus T dot dwg. इस पर T ऊपर है, dwg rightward है. This goes away. Finished. Okay. So adds up to what? 0. Alright. इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? So T dx इसमें कैंसिल हो गया, यानी T dl1 माइनस T dl2 बराबर 0. T कैंसल्स आउट. dl1 इज इक्वल टू dl2. ये डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हो गया, हम लोग निकाले हैं ग्राउंड फ्रेम में, बट हमको रिलेशन चाहिए B और C के बीच चाहिए. रिप्लेस द डिस्प्लेसमेंट विद करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन. यहाँ पर तीनों कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, कंस्टेंट रिलेशन फॉर वेलोसिटी और कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, सबका फॉर्मेट एक जैसा होगा. लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देयर इज नो वेरिएबल एंगल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम. इससे रिप्लेस dl1 with corresponding B and replace dl2 with corresponding C. B is equal to C. This is the fourth equation. Okay, this I write it here also. So this constant relation which we wrote, that was in ground frame. Okay. अच्छा इसी कंस्टेंट रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, वेज फ्रेम में लिखते हैं, थोड़ा इजियर हो जाएगा. इट विल मच मोर इजियर. काफ़ी कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा अगर कंस्टेंट रिलेशन को हम वेज के फ्रेम में लिखें तो. समझ गए? अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है? Now we write down the constraint equation in wedge frame. In wedge frame, constraint equation in wedge frame. उसमें हम लोग सारा डिस्प्लेसमेंट लेंगे वेज के रेस्पेक्ट में. अभी रस्सी इफेक्टिवली 4 पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. किस पॉइंट पर? एक P डैश पर, एक P डबल डैश पर और वेज ब्लॉक B2 के इस पॉइंट पर. अब सारा डिस्प्लेसमेंट हम लोग वेज फ्रेम में लेंगे. तो यहाँ देखिए इस पर T इधर है. अब B1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वेज के फ्रेम में वो dl1 है. तो T डॉट dl1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? T इंटू dl1 इंटू cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री 1 हो गया, प्लस P डैश को देखिए, P डैश पर 80 फोर्स T उधर लगा रहा है. इसका वेज फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. काहे 0 है? ताकि जो पुली है वो वेज से रिजिडली अटैच्ड है. वेज का अगर ग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट dx है, इस P डैश का भी dx ही होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट. तो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यहाँ 0 वर्क करेगा. T इंटू 0. ये पॉइंट भी सिमिलर आर्ग्यूमेंट है. इस पर T नीचे लगता है और वेज के फ्रेम में ये पॉइंट रेस्ट पर है,
तो उसका जीरो वर्क डन होगा टी के द्वारा, टी इंटू जीरो, बच गया ये वाला। इस पर टी ऊपर लगता है, वेज फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट DL2 नीचे है, एंगल 180 डिग्री है, तो टी DL2 cos 180 डिग्री जो कि -1 हो जाएगा, ठीक है, दैट एड्स अप टू 0, इसमें टी कट जाएगा, तो DL1 इज इक्वल टू व्हाट, DL2, देखिए फिर रिप्लेस DL1 DL2 में करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशंस, B इज इक्वल टू C, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया फिर से, बट ये मच मोर ईजियर है, देख रहे हैं, कम टाइम लगा, ग्राउंड फ्रेम में लिखने में ज़्यादा समय लगा था, वेज फ्रेम में लिखने में कम समय लगा, जल्दी आंसर आ गया। यही एडवांटेज है कंस्ट्रेंट थ्योरी का, समझे नहीं बात को, हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब हमको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। B इज इक्वल टू C। अब आप क्या कीजिए कि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को ऐड कीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन जोड़ेंगे, टी चला जाएगा, मिलेगा क्या, mg प्लस 2ma इक्वल टू 2mb प्लस mc, 2mb प्लस mc, ओके। अब हम लोग c को हटा देते हैं, तो इसको इसमें देखिए इन दोनों जोड़े हैं, इन दोनों को फर्स्ट सेकंड, तो टी कट गया, mg प्लस 2ma हो गया बराबर 2mb प्लस mc, m चला जाएगा, g प्लस 2a बराबर 2b प्लस c हो गया। अच्छा, c को रिप्लेस कर देंगे b से, g प्लस 2a इज इक्वल टू 2b प्लस c भी b हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3b, g प्लस 2a हो गया 2b प्लस b 3b, और b है 3a, g प्लस 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स b को लिख देंगे 3a, ये होगा 9a माइनस 2a 7a, ये हो जाएगा g/7, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, देखिए, तो g प्लस 2a इज इक्वल टू 3b एंड b इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 3a हो गया, तो ये हो जाएगा 9a 7a, आंसर g/7, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा, समझ गए, पूरा समझा दिए। देखिए कंस्टेंट इक्वेशन का एडवांटेज देखिए, कंस्टेंट इक्वेशन का एडवांटेज देखिए, आप कितना जल्दी आता है आंसर। तो सूटेबल फ्रेम का चॉइस अगर ठीक है आपका, कंस्टेंट इक्वेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, कंस्टेंट इक्वेशन विल बी फाउंड वेरी इजीली, समझ गए ना। इस तरह से 40th वीडियो में ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। इसको अच्छा से देखिए, कोई डाउट उठे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, एक्सप्लेन कर देंगे उसको, ठीक है ना। अब यहाँ से क्लोज करते हैं, ऑलराइट, चलिए।